नाम है प्रोफेसर B.R. फुकन और मेरा साथ जो कलीग है प्रोफेसर मलियप्पा, प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर अजय, प्रोफेसर शुक्ला, प्रोफेसर आरंकी, प्रोफेसर लखंडे, प्रोफेसर दिनेश कुमार, प्रोफेसर Shankar. In respect of agriculture, this region really a peculiar challenging situations. We have the with high terrain area and the remoteness, totally dependence on the nature, this rainfall. Our agriculture is dependent on the rainfall, and people are also not exposed to very modern technology. Due to remoteness, our cost of cultivations and cost of say transportations are also very high. So it's a different peculiar situations in our regions. Soil are acidic, and because of the soil erosion, quality also deteriorating, productivity also in many cases it's deteriorating. So that's why our university taken this initiative to popularize some of the technology or some of the information that the very essential for this hour to the people of this region, and that's why some technology related articles were published in the print media during last month, and this information to be taken to the farmer as much as possible, and elite natural farming, zero tillage farming, vermicomposting, organic farming, and different technique of nutrient use efficiency, protected cultivations. And likewise, we have different experts with us. Good morning to all of you. Myself, Dr. A.S. Mailappa. I am the professor and head in the Department of Natural Resource Management. And first of all, we all need to know that what is the need of this nutrient use efficiency. Before that, what is nutrient efficiency? Why all of a sudden this come into picture in the recent era? So Government of India, they are giving major focus on emphasizing nutrient use efficiency. And the reason behind this is, we know that totally we are having 830 crores of population, of which 4 countries are actually topping, which occupies around 47%. Number one is China, 147.5 crores of people. Second is India, just 6 crores less, 141 crores. Then third is US, 35 crores. Next is Indonesia, 28 crores. So if you add up all these 4 countries, China, India, US and Indonesia, only these 4 countries alone out of these 200 plus countries, so we are occupying a dominant proportion and also the great responsibility in terms of feeding the entire globe. So in that perspective, if you look at the agriculture production scenario, last year 2025-26, so we have achieved a remarkable achievement, 357 million tons of food grain production, of which rice is 150 million tons, then wheat is 120 million tons. We have already achieved 35 million tons of pulses, another 28 million tons of millets. And out of these 4 crops, 4 dominant crops in India, for most of the crops, of the 4 crops, we are occupying the dominant position globally. For example, if you take rice, we are the second largest producer. Same is the case with respect to, if you take millets, we are number 1 in terms of food grain production. So keeping in view of, and to feed the escalating population every year, say I have told you in India we are having 141 crores. So every year this population is going to get increased. For feeding the additional population, we are urgently in need of producing 5 million tons minimum. Say now 357 million tons. Next year, compulsorily we have to produce 362 million tons minimum. That 5 million tons extra is required to feed the additional population that is going to be added up every year. So under that compulsory situation, and we are having total geographical area of 328 million hectares, of which only we are having 147 million hectare is under cultivation. And globally, if you look at the scenario, India is in the second position again out of the total cultivable land in the globe. So we have great responsibility, and actually globally we are leading in terms of food grain production.
To achieve the food grain production sustainably every year, one of the most important reason behind this is we have to increase the nutrient use efficiency. Unless we increase the nutrient use efficiency, it is very difficult to achieve the target of minimum 5 million tons of food grain production. Nutrient use efficiency in a simple term, if I need to say, whatever the nutrients we are applying to the soil, out of which how much is being taken up to the plants. So normally we assume that all the nutrients whatever we are supplying, we are under misconception that all are being taken up by the crops. Not at all. For example, if you take the major nutrients, out of 17 essential nutrients, if you take the major nutrients like nitrogen, so nitrogen, phosphorus and potassium, they are considered as a primary nutrients. Nitrogen, if you take that, maximum use efficiency is 35 to 40%. Maximum, which means that if I provide 100 kg of nitrogen to the soil, only under the best management practices, 40% is being taken up by the plants, which means that 60% is going as waste. If you take the scenario of phosphorus, the condition is still worst. Only 15 to 20% is the phosphorus use efficiency. Coming to potassium, maximum it can go up to 45 to 50%. If you take the scenario of micronutrient use efficiency, maximum only 5%. So which is giving a great alarm to all of us that unless otherwise we increase the use efficiency, it is very difficult to achieve our target. That is why Government of India is giving a lot of focus on increasing the nutrients efficiency through Indian Council of Agriculture Research Institutes and also through all agriculture universities, including Central Agriculture University. So keeping in line with this, our Central Agriculture University, they are giving a lot of focus on various aspects related to increasing nutrient use efficiency. One such effort is this, a lot of popular articles related to nutrient use efficiency has been collected from all the faculties of various constituent colleges of Central Agriculture University Imphal, and the same has been published in this, we have a compendium of all the news articles, popular articles that has been published related to nutrient efficiency. And so that, people will, all the farmers or the stakeholders related with agriculture will get aware of why the nutrient use efficiency is important, what are all the different ways and means through which we can enrich this nutrient use efficiency. And, to increase the nutrient use efficiency, as I told you, university is giving a lot of focus on this through various technologies that are being developed by various constituent colleges. And as a pioneer in Arunachal Pradesh, we are leading we are all leading one of the institute related to agriculture and horticulture. This College of Horticulture and Forestry, we are also taking a lot of efforts in terms of various initiatives to promote nutrient use efficiency. Suppose if I need to say in a simpler terms for the understanding of the farmers, already this particular state, they themselves by default they are using this various organic sources of supplying the nutrients. When I talk about supplying the nutrients, there are two major sources. One is organic sources, second one is inorganic sources. In the inorganic sources, all the fertilizers will come. So by default, most of the farmers in Arunachal Pradesh and most of the northeastern states, they follow these organic practices. They supply the nutrients through organic sources. Organic sources refers, for example, farmyard manure, compost, different types of compost. For example, vermicompost. Other than that, green manures, green leaf manures, oil cakes. These are all the different ways and means of supplying the nutrients to the plants through organic. So as we are giving major focus on increasing nutrient efficiency through these organic sources, this we can promote application of these organic manures, whatever I have listed out. Not only promoting these organic manures, in the organic manures, irrespective of different types of organic manures, the major focus is we have to ensure complete decomposition of this organic manures. Suppose farmyard manure or compost or anything, decomposition matters a lot. Unless the decomposition is nearer to 100%, because the nutrients are going to be taken up by the plants in the inorganic form, to convert the organic forms of
forms of nutrients into inorganic forms, that is going to be ensured by this decomposition, which is facilitated by the microorganism. Unless the decomposition is going to be facilitated, the nutrients will remain in the organic form only, which cannot be taken up by the plants. So my sincere request to the stakeholders, especially the farmer friends, when we apply any of the organic manures, like farmyard manure, compost, vermicompost, whatever it is, you have to definitely ensure complete decomposition of these manures, then only nutrient use efficiency is possible. This is number one. Number two, we all of us, we know that even I was talking about this decomposition is facilitated by various beneficial microorganisms that are present in the soil by default. But sometimes these beneficial microorganisms, we can also add up, that is what we are talking about, biofertilizers. Various biofertilizers are available. For example, rhizobium is one of the popular biofertilizer which enriches nitrogen use efficiency. Similarly, phosphorus solubilizing bacteria like Bacillus, they are also available. So these biofertilizers can also have a greater scope, especially in the northeastern region. If you apply this biofertilizer, they are going to enhance the nutrient efficiency. Besides that, they are going to have a enormous beneficial role on soil fertilities and also sustaining crop productivity. Then third important point I would like to say that being the northeastern region, most of our soils are acidic in nature. Besides increasing nutrient use efficiency, it is highly important to maintain the pH of the soil closer to neutral. By default, all our soils are acidic in nature. Most of the soil pH is below 5. So we need to take a constant effort in terms of increasing the pH. For that, one of the most important things is that we need to add many of the soil amendments, for example, lime application. So if you apply lime, pH is automatically, gradually it is going to get increased, because for uptake of the nutrients, though they are present in the soil, this maintenance of the pH is also playing a crucial role. Under the pH of 6.5 to 7.5, maximum of the nutrient use efficiency is going to be ensured, and that is why my sincere request to all the farmers to take care of the plants in terms of increasing the nutrient use efficiency through whatever the points I have listed out. Other than that, we are also having several ways and means through which we can enrich these manures. For example, vermicompost. When we talk about the compost is only a simple decomposition process of raw material. When we add these earthworms, automatically this is going to be facilitated. We are doing an enriching process. Similarly, we can enrich these organic manures. We can enrich through phosphorus, that is called as phosphorus enriched biofertilizer, because phosphorus enriched manures. Because the problem with the manures, whatever we are supplying, it is to be definitely ensured with the complete decomposition, as I told you. Besides that, if you are enriching with the phosphorus, because phosphorus is most important deficient nutrient, especially in acid soil. So in that line, enriching also most important. And when we are going to take care of these points, whatever simple points, whatever I have told you, every farmer, they have this organic source of nutrients, no doubt. But only the thing is that they have to ensure decomposition of these manures, whatever they are playing. So through which we can definitely enrich not only our soil, even crop productivity can be enhanced to the greater extent. नेचुरल फार्मिंग, सो एक टाइप का ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बोल सकते हैं. सो इसमें मेनली 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया है. सो इसके द्वारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री बहुत सारा एक्टिविटीज़ को हम कंडक्ट किया है. जैसे 2020 to 23 से हम लोग बहुत सारा फार्मर्स को इसको ट्रेनिंग दिया गया था. इवन अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम करता है, नॉट ओनली ऑन कैंपस, इवन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफ कैंपस जो है, सो वहाँ पे भी हम लोग जाके फार्मर्स को इसके बारे में अवेयरनेस देता है. सो जैसे बोलने से नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है मेनली, सो नॉन केमिकल इनपुट्स को हम लोग इसमें प्रमोट करता है. सो जैसे अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा फार्मर्स पसंद करता है. सो नेचुरल फार्मिंग में भी सो इसी तरह से कोई भी केमिकल इनपुट्स को प्रमोशन नहीं करता है. सो जो भी लोकल रिसोर्स होता है उसको यूज़ करके हम लोग इसमें ऑर्गेनिक इनपुट्स को तैयार करता है. फॉर एग्जांपल बोलने से जीवामृत, सो एक ऐसे फर्मेंटेड माइक्रोबियल बायोकल्चर है. सो एज ए सीनियर मलप्पा सर ने जो मेंशन कर रहा था,
सो जो भी जो सॉइल में जो माइक्रोब्स होना, बेनिफिशियल माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। सो न्यूट्रिएंट्स होने से भी जो पीएच बैलेंस होना है, साथ में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होना है, सो देन ओनली जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्लांट्स को देने में और प्लांट्स उसमें लेने में मदद हो जाएगा। सो इसीलिए जैसे एग्जांपल जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया। बीजामृत ऐसे एक फार्मूलेशन है, उसमें हम जो बीजन को, कोई भी जो बीजन है, फूली है, उसको ट्रीट करने में इसको बीजामृत को हम यूज़ करता है। ये सिंपल प्रोसीजर होता है। सो जैसे हम लोग एक सिंपल एक बकेट लेके उसमें हम आधा पानी भर के, सो अराउंड 5 kg फ्रेश कवडंग को रात भर उसमें कपड़ा में उसको भिजाता है। साथ में रात में 1 लीटर पानी में अलग से हम लोग 50 ग्राम जो लाइम होता है, चूना, उसको हम अलग से भिजाता है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के जो कवडंग, जो गाय का जो गोबर है उसमें पानी में भिजाया था, उसको स्क्वीज़ करता है। देन उसमें हम लोग 2 लीटर से 5 लीटर तक गाय का मूत्र होता है, कौ यूरिन, उसमें हम ऐड करता है। देन रात में जो भिजाया था अलग से 1 लीटर पानी में जो लाइम वाटर, उसको भी हम ऐड करता है, ताकि वो जो ये जो बीजामृत है वो बैलेंस बन जाएगा। सो जो पीएच है न्यूट्रल बन जाएगा। सो देन उसको हम लोग कोई जो बीजन है उसको ट्रीट करने में मदद करता है। सो ऐसे करके हम उसको जो बीजन लगाने से क्या होगा, सो उसका बीमारी से बचाएगा और उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा। इस तरह से जो बीजामृत को हम लोग अवेयरनेस देता है, इसके कैसे यूज़ करता है बोल के। नेक्स्ट होगा जो मेजर है जीवामृत। सो जीवामृत है, सो सॉइल के लिए एक अमृत जैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि सॉइल में जो बैक्टीरिया होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उसको संख्या बढ़ाने में ये जीवामृत फार्मूलेशन काम करता है। सो उसको तैयार करने के लिए भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। सो जैसे 200 लीटर का मान लीजिए कि 1 एकड़ के लिए, सो 1 एकड़ एरिया के लिए 200 लीटर का ड्रम होने से उससे हम इसको मैनूर बना सकता है। सो फॉर एग्जांपल इसमें 180 लीटर पानी भरना है, उसमें हम लोग 5 चीज़ इसमें ऐड करना पड़ता है। सो वो सब चीज़ सस्ता में मिल जाता है। एक है 10 किलो गाय का गोबर लगाना है, 10 लीटर गाय का मूत्र लगाना है। सो देन 2 kg गुड़ लगाना है, 2 kg कोई भी फ्लोर, सो बेसन आटा या कोई भी पल्सेस का आटा लगाना है। लास्टली जो लगभग आधा kg से 1 किलो जंगल का जो मिट्टी है, जहाँ पे कोई भी खेती नहीं करता है, सो या हरा भरा जो घास होता है उसके नीचे वाला अच्छा वाला मिट्टी को, लोकल मिट्टी को लगाना पड़ेगा। इस तरह से 5 चीज़ को लगा के, सो 7 डेज इसको हम करने से 7 दिन तक इसको प्रिपेयर हो जाएगा। देन उसको हम लोग साइल में लगा सकता है। ये से लगाने से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, साथ में इसके अंदर में जो कोई भी जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया था, जैसे कवडंग में रहता है, सो और जो लोकल जो मिट्टी में रहता है, वर्जिन सॉइल में, वो सब संख्या बढ़ा के, सो हमारा मिट्टी में उसका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, हमारा न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी अच्छे से बढ़ पाएगा। सो इस तरह से हम लोग बीजामृत, जीवामृत को भी प्रमोशन करता है। उसके साथ साथ हमारा CAU सो बहुत सारा ऑर्गेनिक इनपुट्स को भी लोकल स्ट्रेन यूज़ करके प्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल CAU बायो एनहांसर एक ऐसे माइक्रोबियल कंसोर्शियम है। इसका मतलब इसके अंदर में बहुत सारा 4 बेनिफिशियल डिफरेंट बैक्टीरिया है। कुछ लोग नाइट्रोजन फिक्स करता है, एजिटोबैक्टर, कुछ P मोबिलाइजर, जैसे सर बोल रहा था, सो फास्फोरस मोबिलाइज करने में जैसे बैसिलस टाइप का बेनिफिशियल बैक्टीरिया होना भी जरूरी है। सो ऐसे 4-5 जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो वो कंपैटिबल है, वैसा वाला बैक्टीरिया को हम लोग इसको एज ए कंसोर्शियम इसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है, वो भी लोकल सॉइल से, लोकल इंसेक्ट जिसमें जो फंगस लगता है उसको लेके, जैसे बेबेरिया हो गया, देन लेकेनिसिलियम हो गया, ऐसे वाला बायोपेस्टिसाइड भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, वो सॉइल में रहने वाला जो डिसीज मैनेजमेंट करने के लिए भी इसको हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो ये सब एक्टिविटीज़ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का द्वारा प्रोडक्शन कर रहे हैं और फार्मर्स को भी अवेयरनेस दिया जा रहा है। अनिल कुमार, जनरली यहाँ पे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर सेक्शन में देखता हूँ। तो जैसे सर ने बताया और इन्होंने बताया कि CAU बहुत सारा बायो इन्हांसर, देन बायो फर्टिलाइजर एंड ऑल द थिंग्स टू इंक्रीज द नाइट्रोजन nutrient use efficiency. So in this direction, the Department of Floriculture is doing research work on protected cultivation by using the soilless media like growing cocoa husk, cocoa peat, vermicompost, FYM of course we are using. Then also
in this direction new things, means whatever the waste materials are available in the Pasighat, like Erica nut shell, bakuli jo bolte हैं, people then generally burn it. So we are using this one. So whatever the nutrients are available, we can utilize in the flower production and quality. Also tea spent. Here Oyan tea estate is there in Siang tea estate in Oyan. So we are using the tea spent itself, because it is only used for the burning the things and nothing is used. So tea spent also we are using. So how the flower quality can be increased. And also in a protected cultivation, we are emphasizing that to increase the quality and flower production, because in this climate change era, carbon dioxide production is high everywhere, because trees are very less. To mitigate the climate change, one of the aspect is go for protected cultivation. So I urge with the farmers that whatever the area they have, utilize them in a protected cultivation, because plant needs carbon dioxide to make the food. So once it is converted and constructed, the polyhouse is constructed, light will trap and carbon dioxide generation will be more, because it is enclosed area. So plant will utilize maximum. So at least we can reduce the carbon dioxide in the environment in a protective manner. Also flower is a high value and low volume crops, highly remunerative. So again I will request, because the farmers of the Arunachal Pradesh, they give some area for flower production itself, so that they can sustain their life, because only growing the food grains and fruits and vegetables, it will not cater the things. Flower is also important, because every occasion, every festival, every function, we need the flowers, right from the birth of the child and death of the people. Everywhere we need flowers. And nowadays Government of India also emphasizing the flower production, and it is an intensive crop. So in that line we are using all the possible grow organic media, to how to increase the flower production and productivity to benefit the community of the Arunachal farmers. And also we are giving the training to the farmers, farm women and school dropouts, to make them self-sustainable, so that they can start the entrepreneurship also, by using the organic media and locally available materials. So in that anthurium, gerbera, chrysanthemum, dendrobium orchids, everything we are producing, and we are giving the information to all the farmers, so that they can start their own business itself. Nursery management also we are using and giving the training on that, and also in that by using all the organic materials only, no use of chemical fertilizers. PSB also we are using, because in the growing media itself, whatever the phosphorus is available, maximum availability should be to the plants. And also I can say that residual, one is very important nowadays, residual effect, means in a first year whatever the crops we have grown, then whatever the nutrients we have applied in a field, next, because as sir said that plants will not acquire more nutrients, only percentage 15% to 20%, rest of the nutrients are available in the growing media. So by utilizing this growing media in the next year, by growing the crops, so this year we cannot give the any fertilizer, any organic media, and we have did the research work on this residual effect, and we have got the very encouraging results. So with these words, I request all the farmers of the Arunachal Pradesh that they go for the organic farming, natural farming, and give more emphasis to the flower also. मीडिया के साथियों को नमस्कार। जैसा कि आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है अल्टरनेट एनर्जी इनिशिएटिव्स और न्यूट्रिएंट यूज एंड एफिशिएंसी, इस दोनों अल्टरनेट जो एनर्जी हैं उसका सबसे पहले तो क्यों ज़रूरत पड़ रहा है। हम लोग जो ट्रेडिशनल जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, अब हम अल्टरनेट की ओर फिक्स क्यों हो रहे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से, उसमें क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही अफेक्ट हो रहा है।
तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारण जो हमारा एग्रीकल्चर है उस सेक्टर पे कुछ भी इफेक्ट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो अल्टरनेट एनर्जी की ओर देख रहे हैं, साथ ही साथ न्यूट्रन यूज एफिशिएंसी की ओर फोकस कर रहे हैं। तो जो हमारा इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो मेनली क्या होता है कि जो प्लेन रीजन है, सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे अधिकतर इनऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर करते हैं वो लोग फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पे ऑर्गेनिक सोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो इंडिया का जो मैक्सिमम फर्टिलाइजर है वो इंपोर्ट होता है फॉरेन से। जैसे पोटासी का अगर फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पोटेशियम कम्प्लीटली फॉरेन से इम्पोर्ट होता है। तो हम लोग इस इम्पैक्ट जो इम्पोर्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम लोग को ऑर्गेनिक सोर्स की ओर जाना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ओर जाना चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर और हेड सर ने बताया था कि जो हर साल जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उस पॉपुलेशन जो ग्रो है उसके फूड जो सप्लाई है उसको फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट 5 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पौधे को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम जो ऑर्गेनिक सोर्स हैं उसमें जैसे कि वर्मी कंपोस्ट एक सोर्स हो गया, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योरिंग हो गया, उसके अलावा बायो फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट्स है, उसके अलावा नेचुरल फार्मिंग को हम ढंग से अप्लाई करके जिस जिस पैचेज में नेचुरल फार्मिंग सफल हो सकता है वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा है या एग्रोफॉरेस्ट्री हो रहा है, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लीफ होते हैं, तो उसको रेजिड्यू होता है क्रॉप का, उसको रेजिड्यू रिसाइकलिंग के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि नॉर्मली फार्मर क्या करता है, रेजिड्यू को या तो बर्न करके छोड़ देगा या खेत के साइड में डाल देगा। तो रेजिड्यू का बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंस है। तो रेजिड्यू रिसाइकलिंग को खेत के अंदर ही करने से क्या होगा, अगर ये प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो जाता है तो उससे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा पौधों को। साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग का जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर जो एनआरएम डिपार्टमेंट है वो समय समय पर किसान भाई बहनों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वर्मी कंपोस्ट की। साथ ही साथ फ्यूचर में भी जब भी किसी फार्मर को अगर ज़रूरत है हम लोग टाइम टू टाइम हम जो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में ट्रेनिंग देते रहेंगे। वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाना है ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, जो भी रेजिड्यू होता है क्रॉप के अंदर या किचन का वेस्ट है, कोई भी जो फार्म का वेस्ट है उसको इकट्ठा करना है। उसके बाद उसको सेग्रीगेट करना है, जैसे कोई स्टोन है, पत्थर है, उसको हटा देना है। उसके अलावा कुछ सिट्रस का कुछ छिलका वगैरह है उसको भी रिमूव करना है, क्योंकि उसके जो अर्थवर्म होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। कुछ ऑयल स्टिक्स है उसको भी रिमूव करना है। उस सेकेंड फेज में क्या होता है, इसको चॉप करना है, स्मॉल छोटे छोटे पीस में कट करना है। थर्ड फेज में होता है इसको पार्शियल डिकम्पोजिशन करेंगे हम लोग, डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा डिकम्पोजिशन हो जाएगा। उसके बाद हम वर्मी बेड बनाएंगे। वर्मी बेड का लेंथ जितना हमारे पास मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, विड्थ लगभग 1 मीटर रखेंगे और हाइट जो है 0.75 मीटर रखेंगे। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हमने जो डाल दिया, जो भी पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल है उसको डाल दिया। उसके बाद हम केचुआ यानी जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, अर्थवर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर 1 टन लगभग हमारे पास प्रोडक्ट जो वेस्ट है तो उसके हिसाब से 1 से 1.5 kg यानी 1 से 1.5 किलो अर्थवर्म को यूज़ करेंगे। उसके बाद सफिशिएंट मॉइस्चर देंगे हम, और इसको हमेशा जब भी वर्मी बेड बनाते हैं उसको शेड के अंदर बनाना है। साथ ही साथ जब इसको हमेशा कवर करना है, कवर के बाद हम बात करते हैं कि इसको टर्निंग करना है समय समय पे, ताकि प्रॉपर एरिएशन मिलता रहे, और रेगुलर इसको पानी देते रहना है। तो लगभग जो है 15 से 20 दिन के अंदर यानी 15 to 20 डेज में एक बार इसको टर्निंग करना है। तो ऐसे अगर 3-4 टर्निंग करेंगे तो 60 डेज के अंदर वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह से रेडी हो जाता है। उसके बाद उसको सीव करके जब पूरा रेडी हो जाएगा तो उसको हम सीव करके उसको शेड के अंदर रख के उसको हम फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। जब वर्मी कंपोस्ट का एक पहचान होता है कि जब ये रेडी होता है तो जो चाय पत्ती होता है, टी लीव्स जो चाय बनाते हैं, ऑलमोस्ट उस टाइप से ग्रेनुअल बन जाता है। तो इस टाइप से हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कंपोस्टिंग बनाते हैं, कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, नॉर्मली क्रॉप रेजिड्यू को लेके हम लोग उसको डिकम्पोजिशन करते हैं। तो नॉर्मल कंपोस्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रिएंट कम होता है, तो उसको एनरिच करने के लिए हम लोग उसमें कुछ इधर कुछ बायो फर्टिलाइजर पहले से डाल देते हैं, या फिर इसमें रॉक फॉस्फेट डालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फास्फोरस कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें एसिडिक सॉइल के अंदर फास्फोरस की नॉर्मली कमी होती है, यानी अवेलेबिलिटी कम होती है। उसको बढ़ाने के लिए हम जो है फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर डेवलप करना चाहिए, या फिर जो है बायोलॉजिकल एनहांस्ड कंपोस्ट बनाना चाहिए। उसमें क्या होगा कि हमें पहले से रॉक फॉस्फेट कुछ ऐड करना है, कुछ जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो भी ऐड करना है। इस तरह से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ जो इस रीजन के लिए जो सुइटेबल ग्रीन मैन्योर क्रॉप हैं, जैसे राइस बीन हम लगा सकते हैं, काउपी लगा सकते हैं, ब्लैक ग्राम लगा सकते हैं, और ग्रीन ग्राम हम लोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ ढेंचा जो सेसबेनिया लगा सकते हैं, और सनहेम भी हम लोग यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली जो एसिडिक सॉइल है वहाँ पे सेसबेनिया सबसे बेस्ट होता है, उसको राइस के साथ भी लगा सकते हैं। अगर ग्रीन मैन्योरिंग का अगर फार्मर के पास टाइम नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो हम ब्राउन मैन्योरिंग की ओर भी जा सकते हैं, यानी राइस के साथ ही उसको लगा के बाद में इसको नॉकडाउन कर देंगे, उसको खेत के अंदर कर देंगे। तो ये जो डिफरेंट सोर्सेज है न्यूट्रिएंट का, मैं समझता हूँ कि जो किसान भाई बहन हैं
इस सब न्यूट्रेंट के सोर्स को यूज़ करके अपने न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, डेफिनेटली उनके जो सोइल फर्टिलिटी है, सोइल हेल्थ है, वो इम्प्रूव होगा और क्रॉप प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। बहुत मेरा नाम डॉक्टर एस.एम. लोखंडे है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड क्रॉप है, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या हॉर्टिकल्चर रिलेटेड पोटेंशियल है और उसका साइंटिफिक तरीके से कैसे यूज़ करना है। तो हमारा जो फील्ड है ये सबसे आखिरी में आता है सिक्वेंशली, जैसे आपने देखा हुआ कि सॉइल से हमने शुरू किया और स्पेसिफिक कमोडिटी स्पेसिफिक जैसे फ्लोरिकल्चर के बारे में प्रोफेसर सुनील सर ने बताया, सॉइल साइंस के बारे में हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डॉक्टर अजय सर ने बताया। ओवरऑल ब्रीफिंग तो सर ने कर ही दिया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के बारे में जैसे कि प्रोफेसर माइलापा सर ने तो स्टैटिस्टिक जैसे बताया गया कि प्रोडक्टिविटी में हम फर्स्ट या सेकंड रैंक में है, बट प्रोसेसिंग का रेट जो है स्टिल इट इज़, सर ने भी अभी जैसे जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग का रेट बहुत कम है। सो फ्रॉम गवर्नमेंट साइड ऑल्सो कि गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज न्यू दिल्ली स्पेशली, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में था लेकिन 86 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज न्यू दिल्ली अभी सेपरेट हुआ है और मिनिस्ट्री भी बहुत अलग अलग तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए और काफ़ी सारे फंड्स वगैरह देने का प्रयास कर रहे हैं। एंड स्पेशली अभी के थीम के अनुसार अगर हम बात किया जाए कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव सोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्सेस फॉर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट के रिलेटेड, तो इसका काफ़ी सारा एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे कि सोलर एनर्जी तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत दिन से इस पे काम हो रहा है। स्पेशली सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी नई दिल्ली भी बहुत सारा सपोर्ट कर रहा है कि छोटे छोटे फार्मर्स के लिए स्पेशली एसएचजीज या पीओज को बहुत सारा सपोर्ट कर रहा है और उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो कर ही रहा है और उसके साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहा है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है रानीपुल में, वहाँ पे भी काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। इसमें लो कॉस्ट सोलर ड्रायर ऑलरेडी डेवलप किया है और इसमें यही कि फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल एप्लीकेशन कैसे कि सोलर ड्रायर हम यहाँ पे हमारा जो भी टारगेटेड क्रॉप है, हमारे यहाँ फार्मिंग कम्युनिटी जो भी कर रहा है, जैसे जिंजर हो गया, जिंजर भी उसमें ड्राई कर सकते हैं और इसी तरीके से फिर वैल्यू एडिशन होता है। अदरवाइज बहुत बार हमें इंक्वायरी आता है कि सर वी हैव द गुड प्रोडक्टिविटी, लेकिन प्रोसेसिंग करने का हमें तरीका नहीं है, हमारे पास टूल इम्प्लीमेंट्स या कुछ नहीं है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करके सोलर ड्राइंग के लिए जिंजर हो गया, टर्मरिक भी ड्राई हो सकता है, उसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स है यहाँ पे जैसे कि ऑरेंज है, कीवी है, ये फ्रूट भी हम ड्राई कर सकते हैं क्योंकि ये सोलर ड्रायर में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि जैसे कि पॉलीकार्बोनेट शीट होता है, इसका बहुत अच्छा एफिशिएंसी है, पॉलीइथिलीन और पॉलीकार्बोनेट शीट होता है, इसका बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंस होता है हीट का और इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन लाइक उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एक टॉप माउंटेड वेंटिलेटर अगर हम लगाएंगे तो ड्राई ईयर से सिर्फ ड्राई होते रहेगा प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि फिर हम जो बात है कि अल्टीमेट कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों चीज़ें हम बहुत स्मॉल साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक इग्लू जैसे भी हम सोलर ड्रायर पॉली शीट का हम जैसे पॉली हाउस होता है सिमिलर इतना बड़ा हम सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के अनुसार हमें प्रोसीड करना है। जैसे कि हमारा प्रोडक्टिविटी या छोटा छोटा हमारा बस्ती है तो छोटा सा भी सोलर ड्रायर हमें बहुत अप्लीकेबल हो सकता है और ये फार्मिंग कम्युनिटी को डेफिनेटली फिर थोड़ा ये स्लाइड मॉडिफिकेशन करने से हम जब बोलते कि क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा और ड्राइंग भी जो है एक्सेलरेट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है और बहुत सारे कि एग्रीकल्चर वेस्ट भी जो निकलता है उससे भी टर्मरिक का भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन हम फ्रेश फॉर्म में हम अगर बेचने के लिए जाते हैं तो फार्मर का यही कंप्लेन आता है कि हमें प्राइस नहीं मिलता है। फ्रेश टर्मरिक हम बेच रहे तो 100 रुपीज़ में
100 रुपीज़ या 60-50 रुपीज़ तक जा रहा है, इट डिपेंड्स, वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है। लेकिन उसका फिर प्रोसेसिंग कर ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, क्योंकि या एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ करके भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस में एक ही है कि स्पाइसेस या अंडरग्राउंड क्रॉप है, इसके लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग लगता है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में हम स्टीम बेस्ड एक क्यूरिंग प्रोसेस होता है। क्यूरिंग प्रोसेस बहुत यूनिवर्सल है, वो तो काफ़ी सारे कमोडिटी में यूज़ होता है, जैसे टर्मरिक में होता है, ऑनियन में भी होता है, और बहुत सारे लार्ज कार्डामम भी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा है, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्टिविटी अच्छा है। तो उसमें भी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं कि स्टीम बेस्ड एग्रीकल्चर वेस्ट से स्टीम को हीट करना है, और हीटिंग फिर बहुत यूनिफॉर्मली और मैकेनाइज फॉर्म में हम कन्वर्ट। एफिलेटेड जो कॉलेजेस है वहाँ पे काफ़ी सारी रिसर्च सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल द्वारा कंटिन्यूस होते रहते हैं, और आने वाले समय में भी फिर ये जो टारगेटेड क्रॉप्स है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, वो क्रॉप का हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम ये कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर भी एक बड़ा इशू है। तो थोड़ा सा स्लाइड हम मैकेनाइजेशन अगर इन्वॉल्व करेंगे, कि जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले तो ये टर्मरिक हो गया, ये बहुत ट्रिकी जॉब है कि उसका क्यूरिंग करना पड़ता है। तो क्यूरिंग के लिए ओपन पैन में हीट करेंगे, काफ़ी सारा पानी वाटर लगेगा, और एग्रीकल्चर वेस्ट भी बहुत लगता है हीटिंग करने के लिए, जो फ्यूल हम यूज़ करेंगे वो भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऐसे स्टीम बेस अगर एक सेमी एटोमाइज हम अगर स्टीम बेस एक वेसल में अगर करेंगे तो उसका क्वालिटी का इशू भी होता है, क्योंकि देखिए हम अगर ओपन पैन में डीप करके हीटिंग कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म उसका हीटिंग होता भी नहीं है, तो यूनिफॉर्मली उसका क्वालिटी और क्वांटिटी भी उस पर भी इम्पैक्ट होता है। स्पेशली उसमें जो वैल्यूएबल कंपाउंड है कि टर्मरिक में करक्यूमिन होता है, सो करक्यूमिन परसेंटेज भी रिटेन होने में भी दिक्कत आ सकता है। लेकिन स्लाइड हम अगर मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने बात किया कि स्टीम बेस्ड एक क्यूरिंग डिवाइस अगर हम यूज़ करेंगे तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। टर्मरिक के बारे में हो गया, और दूसरी एक चीज़ है कि ये दिस इज़ वन पार्ट के रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद हम जैसे भी हम खेत से निकलता है उसके बाद उसका एक तो इमीडिएटली कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो उसका प्रोसेसिंग करना चाहिए पैकेजिंग करके, या कोई तो उसका अल्टरनेटिव होता है। और स्पेशली जो कमोडिटी का एक फील्ड हीट रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए एक होता है कि ये हाई टेम्परेचर यूज़ करके एक अल्टरनेटिव हो गया यूजिंग ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, और लो टेम्परेचर भी यूज़ करके भी हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे ज़ीरो एनर्जी चेंबर। वो सिंपल तरीका है, काफ़ी सारे दिनों से हमारे यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी काम हुआ है कि ज़ीरो एनर्जी कूलिंग चेंबर में भी स्पेशली हाईली पेरिशेबल जो कमोडिटी है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है, तो वो फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। और सिंपली हम जस्ट एक गड्ढा खोदना है और उसमें ब्रिक का कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना है, और साइड में क्या करना है कि दीवार के और जो गड्ढा खोदा गया है उसमें थोड़ा गैप रखना है, और उसमें क्या करना है कि अल्टरनेटिव लेयर्स अलग अलग रेत का गोटा ऐसा अलग अलग लेयर बना के सिर्फ उसमें वाटर पानी डाल के थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, और आराम से फिर वो चेंबर में हम कितना एटलीस्ट हम एक वीक के लिए तो भी हम हमारा कमोडिटी जो पेरिशेबल कमोडिटी है उसका शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी नहीं होगा या कोई फ्यूल का ही नहीं होगा, और फार्मर्स को इजीली ऑपरेटेबल और उनका ही मतलब सिंपल सा जो कंस्ट्रक्शन करके हम यूज़ करके हम ज़ीरो एनर्जी कूलिंग चेंबर का भी यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज और शेल्फ लाइफ स्टडी इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली फॉर द हाई वैल्यू क्रॉप्स जो भी है कि एग्जॉटिक फ्रूट्स जो है उसमें भी काफ़ी हेल्प हो सकता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हाइब्रिड ड्रायर्स भी डेवलप किया है स्पेशली फॉर कार्डामम प्रोसेसिंग के लिए,
सो आने वाले समय में भी अगर क्रॉप स्पेसिफिक या कोई स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिलेटेड या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड या जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेस है कि प्रोसेसिंग में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम फार्मर तक हम पहुंच सकते हैं, या नहीं तो फार्मर भी यहाँ पे आने के बाद हम स्पेशल मॉड्यूल डेवलप करके फार्मिंग कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए Safe food product, that is most important thing. Solar energy is will be the great help, particularly in the solar energy. And our university, we have defined campuses in different district, different state. So different types of research are also going on, and this research will help a lot for the farmers also. And this compendium says many things about this different how the solar energy can be used, wind energy can be used, okay, then how use of this agrochemical can be reduced. As you know that probably India is the third country in the world of having the highest cancer patients, most probably the third country. So that in that way also we should try to reduce those energy which are harmful to the human being, diversity, animal kingdoms, no? So we should put our maximum effort, and health is wealth after all. Actually farmer को many times timely जो input नहीं मिलता है, so हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है क्योंकि हम लोग ऐसा इनपुट हम लोग को देना पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए. But the government of Arunachal Pradesh is actually already they have the good project scheme under that government of Arunachal Atmanirbhar Yojana, there is a Yojana. So under that government provide funding, good number of funding up to the 45% subsidy government provide. I think government का साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर देने से टाइमली अगर अवेलेबल हो जाता है इनपुट, it's a great problem input that will be help a lot to the farmers. और regarding marketing that also not आज का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है और शायद ये प्रॉब्लम होते रहेगा, बट ये नहीं है हम लोग को बेहतर रहना है. So government also initiating say formation of self-help group, formation of say FPO, farmers producer organization, and formation of farmers FPC, farmers producer company. Okay, in that way government also trying to strengthen the marketing and processing of the farmers bill. So everybody, it's a duty of everybody, and the university also, and state government also as a citizen and media also to support our farmer, because without farming community or without food we cannot survive. That is the most essential things. We should work together. We should provide maximum support. I also recently visited your Mebu area, and I visited this area of arecanut plantation, then pineapple plantation, then dragon fruit plantation, the cultivations, etc. Few areas. Yes, farmers are putting best effort for this, but for that certainly it's a market. Market is always based on the competitions. To survive market, we'll have our own strategy. So youth of this state will have to work together. That is the most important things. The solution is based on you only, and probably government is always will be helpful to extend the support.